इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जैसे उनमें प्रीतम इज ऑफ कोर्स देयर, शंकर एहसान लॉय, दिस विशाल शेखर, इन लोग के पास मैं अपने गानों की सीडी लेके एज अ स्ट्रगलर मैं गया हूँ। इतनी प्यारी मेलोडी थी तो मैं सोच रहा था कि भाई कैसे इसको सिंपल रखूं, अच्छा करूं। एक दो कुछ और ड्राफ्ट लिखे भी थे। देयर वाज अनदर ड्राफ्ट व्हिच वाज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो कुछ भी मेरा है सब दे जाऊं, मैं प्यार तेरा ही बस ले जाऊं। अ टाइम कम जब आप इस ड्रिल से कई बार गुजर चुके होते हैं, you know. Drill se re. Exactly. Kaide is really close to my heart because it's an ode or a homage to couples or partners who have figured out how to stay in love. तो शिल्पा राव का जो वर्जन है उसके एक क्रॉस में ये पार्ट आता है कि मुझ पे अजीब है असर तुम्हारा, दवा लगे जहर तुम्हारा, कि प्यार कम होते होते हुआ तुम्ही से है दोबारा। बिना मतलब के जिसे प्यार है, बिना मतलब के जिसे प्यार है, बस वही प्यार का हकदार है। क्या से क्या हो गया हूँ मैं ये वहम पाल कर, खाता रस मुझ पे मेरा दूर वहम कर दिया, ओ बेदर्दिया। आई एब्सोल्युटली हैड अ ग्रेट टाइम एंड जनरली हमारा जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक कट टू सीधा शायद आज ही इतना उसके बाद मैं बोला हूँ। एंड लाइक आई सेड कि व्हेन यू आस्क अ सर्टेन क्वेश्चन एंड द वे यू रिसीव माय क्वेश्चन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, उससे भी कन्वर्सेशन बहुत वो होता है ना। यू आर an expert at that. Thank you so much. Hi guys, it's so special for me on Just Too Filmy to have the time to talk to some of the greatest creators of our era. मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हर era में बहुत सारे musicians मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे actors मिल सकते हैं, stars, influencers, but in every generation you only find a handful of these artists. These are our lyricists, and on the Lyricist Corner today, I am so happy to be joined by Mr. Amitabh Bhattacharya, a dear friend, and I have a feeling that you're going to love this conversation. Come. Listen in. Welcome to Just Too Filmy. Thank you, thank you. This is also the first time you're on this show, so this is very exciting. I believe so. Yes, for us. yes, absolutely. Was it pre-pandemic? I think just after the pandemic. Just after the pandemic, when Kesariya and all was correct, happening. correct. That was a पिछली बार तभी हुआ था. Yeah, I call it Kesariya Tera, but that was from Brahmastra, I remember. Exactly. और आपके तब से अब तक मतलब हजारों इंटरव्यूज हो गए होंगे, मेरे ज्यादा नहीं हुए तो फिर. I'm very lucky because it's so exciting to talk to you after a while, because it means that we have so much to talk about. Exactly. I thought it'll be great to start with, of course, the two songs that have captured the imagination of people right now. Three actually, because there are three albums in quick succession. Metro in Dino, which literally brought back music, which is amazing. Right. The song from Param Sundari, which is Pardesiya. Okay, we have to talk about that. And of course, War 2. Okay, so these three albums have come in the last couple of weeks, I would say. And it's been absolutely wonderful. So let's start with that. How is this phase for you when a lot of your work comes out? How do you feel? Exciting, because सबसे पहली बात तो ये phases मेरे करियर में like over the last 15 years कभी कभार बीच में आए हैं, जबकि बहुत से releases एक के बाद एक आते हैं. So this has been that sort of a phase, to be honest. एक के बाद एक गाने आ रहे हैं, काफ़ी लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. एंड वैसे जब हम, एज यू मेंशन्ड कि द लास्ट टाइम वी कनेक्टेड एंड यू इंटरव्यूड मी, विच वाज ड्यूरिंग ब्रह्मास्त्र एंड केसरिया, तो उसके बाद से द फॉलोइंग 3-4 years आई वुड से हैज़ बीन क्वाइट इवेंटफुल, क्रिएटिवली एक्साइटिंग एंड सेटिस्फाइंग ऑल्सो. कुछ काम आया है जो मुझे करके भी मज़ा आया, तसल्ली भी बहुत हुई, वो लोगों ने पसंद भी बहुत किया. So yeah, I would say the last 2-3 years have been quite exciting. Very exciting, because in the meantime you've had that amazing album from Lal Singh Chadda. Correct. Oh my God, like that song, okay, and those songs have become an anthem, okay. Then you've had Rocky Rani ki Prem Kahani. What Jhumka is like one of my favorite refrains. मैं आते जाते बोलती रही हूँ, What Jhumka. It's so fun, okay. That was another great album. You also had fun albums like Tu Jhooti Main Makkar, where we did not expect to have such a dardnak song, which is Bedardiya. Oh my God. What's going on in that song we have to talk about, because that song just, मतलब वो गाना take off कर जाता है, वो अलग zone में चला जाता है.
You also had Stree 2, which was like, according to me, the album of last year. Right. I spoke to Sachin Jigar at length about that. हाँ. And you've had a lot of other stuff. Am I missing any highlights? Because there's so Actually much. कभी-कभी मैं ही मिस कर जाता हूँ, बोलते अरे हाँ ये भी तो था, ऐसे हो I जाता hope है. I'm doing a bit. Bhediya. हाँ, of course, अपना बना Bhediya ले. was हाँ, amazing. correct, Apna Bana Le. absolutely. Right, So right. it's been quite eventful. Quite eventful. So let's start with Param Sundari, Right. because I think this song has brought back an era. Everyone's saying, oh my God, like Sonu ji ki awaaz, Sachin Jigar's music. The sort of respectful, I would say, throwback to the 90s. Talk to us about making that song. So ये गाना, we worked on it and we cracked it last year for the film. I remember Sachin Jigar, me, Dinesh Vijan, Dinu, our producer, the director, we were all in Dubai for it. वहाँ पे कर रहे थे. And जब ये गाना बना रहे थे, obviously जो underlining brief mostly ज़्यादातर गानों का हमारा होता है कि we need a good love song, a big love song for like the launch of the film and ये वो तो outlining brief था ही. तो जैम करते करते आई रिमेंबर सचिन एंड जिगर केम अप विद दिस मेलोडी, और सुनते ही हम लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा है. इट एग्जैक्टली रिमाइंड्स यू ऑफ दैट अर्ली रहमान साहब के जो कुछ रोजा बॉम्बे के दौर के जो गाने आए थे, दैट एरा, उसका एक हैंग था उसमें बहुत. तो वी इंस्टेंटली लाइक्ड इट. एंड और ये मैं कहता भी हूँ लोगों से, मतलब आपको भी बता रहा हूँ कि वो एक गाना है जिसमें आई फील द मैजिक इज ट्रूली इन द कॉम्पोजिशन एंड द सिंगिंग ऑफ द सॉन्ग. मतलब मैंने भी अपनी तरफ से आई हैव डन माय बेस्ट, बट अगर आप देखें तो कोई लिरिक्स में ऐसी बहुत कारीगरी है, बहुत कमाल की मैंने कविता लिख दी है, कुछ शायरी की, ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल उसको निभाया है, जो ज़बान पे चढ़ने और समझने लायक लिरिक्स हैं. बट द ट्रू मैजिक वो उस धुन में है, एंड सोनू जी ने जो उसको गाया है जिस तरीके से, आई थिंक दैट इज द मैजिक. But I'll tell you, I'm sure, I completely agree with you. Yes, Sonu Nigam's voice. Yes, the composition. Yes, all those comparisons. But the idea of bringing the word Pardesi back, I think that's a great choice, because we grew up with Pardesi Jana Nahi. परदेसी जाना नहीं, परदेसिया, Pardesi, बच्चन साहब वाला परदेसिया, yeah. you know. So I don't think it's so nice that you take a word and you make it new, Right, because actually it's a very old school word. right. But ये word गया नहीं है हमारी सिस्टम से नहीं गया है, हाँ. क्योंकि हम हमारे सिस्टम में इतना है, हम लोग इतना रहे हैं परदेसिया वर्ड के साथ, कहीं ना कहीं परदेसियों से ना अखियां मिलाना, वो चला आ रहा है, यू नो, एक हिस्ट्री है उसकी. और परदेसिया जो पर्टिकुलर वर्ड है, परदेसी या परदेसिया, एक वो इनर सर्कल्स में ये बात भी है कि दिस वर्ड नेवर गोज रॉन्ग, इट ऑलवेज वर्क्स. Oh. So I remember when we were working on this, Correct. fleetingly इससे पहले कुछ एक और सोचा था मैंने, which I don't even remember now. Correct. And then परदेसिया came to me. I said कि बैड बहुत अच्छा रहा, and we had this discussion कि it's said about परदेसी and परदेसिया कि जब भी किसी गाने में ये वर्ड आता है, Correct. वो चल जाता है, चल जाता है. तो चलो बिल्कुल. करके देखते हैं. क्या बात है. और देखिए, देखिए. also I feel like it's not out of place. It's not just for the sake of using it. Right, right. इस फिल्म के ट्रेलर से पता चलता है वैसे भी कि हाँ. ये जो लड़का है वो परदेसिया है. हाँ, exactly. He has migrated to another Yes, location and वहाँ पे yes. वो, you know. And that's why it makes sense. Right, exactly. Oh. तो justified भी है. Yeah. और मेरे लिए more than thought and justification, what always is important for me कि whether that word is perfectly fitting that place in the song. कई बार क्या होता है ना कि a certain thought works for you. So कभी-कभी आप थोड़ा force fit भी करते हैं, या फिर अगर मैंने word दिया और composer से कहूँ कि भाई इसको थोड़ा बिठा लीजिए, तो वो थोड़ा modify करते हैं melody को. ये melody थी और ये बैठा परदेसिया, मतलब that's the way it happened. तुमने ये बात मुझसे कही and I must say that I spoke to Shankar Ehsaan Loy. Amitabh bhai, what a freaking soundtrack. What a genius. He is just amazing. Amazing to work with. The most, so easy and you such know, a Fun wonderful guy. guy. underplayed, but the most talented. Yeah. पिछले कुछ दिनों में मैंने तुमसे बात नहीं की अमिताभ, लेकिन बाकियों से जरूर बात की तुम्हारे बारे हम में. हैं ही ऐसे. है ना? So whether it's Rajshekhar who said something wonderful about you on the show. अमिताभ के ज्यादातर गानों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि अरे यार, अब जैसे एक उनकी कुछ लाइनें मुझे अटक जाती है. Just a couple of weeks ago, और Shankar साहब from Shankar Ehsaan Loy, he, like we were talking about, पापा कहते हैं बड़ा काम Right. करेगा बेटा हमारा, you know, and there was this beautiful point in that song where, can you sing it for me a little bit? हाँ, the beginning of the song. Yeah. पापा कहते हैं ऐसा काम करेगा, बड़ा होके मुझको तू बदनाम करेगा. तो it's actually the reverse of पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. तो that was Absolutely. the idea. Which I love, because you've only written Daddy मुझसे बोला तो गलती है उसमें मेरी. मेरी एक फेवरेट लाइन है उसमें कि ओ मुझको सफलता मेहनत से मिली थी,
उतनी ही मेहनत से तू आराम करेगा। I love एंड यू it. राइट, वो डैडी मुझसे डीके बोस, Yeah. इट्स इन द सिमिलर लाइंस कि वो That you have these 3 songs Correct, and correct, you've correct, written correct. both the extensions of those Correct, songs. It's almost correct, like correct. हर generation को Hmm. you have extended the thought of पापा कहते जी, हैं, which is जी। amazing. But बड़ा होके मुझको तू बदनाम करेगा. हाँ, I think going back to what we were talking about, हाँ, it's also about the lyric fitting in the rhythm. अच्छा, हाँ, And हाँ, he correct. was talking about that is the magic of having you because you also understand the music around it. Right, You know, right, क्योंकि right. वो actually तू मुझको बदनाम करेगा usually होता है हाँ, है when ना? you speak, Yes. but गाने में वो थोड़ा, चेंज हो जाता है. and I believe what Shankar sir meant also, जो कि मेरा हमेशा से ही रहा है कि मेरे लिए apart from what I'm thinking or I'm trying to say in the content of the lyrics, मेरे लिए the way it is being scanned in the melody, because मैं अब तो ये zillionth time repeat कर रहा हूँ कि that's how I've become a lyricist. Yes, of धुन पे course. बिठा बिठा के, हाँ बाकी जी. लिखने का मेरा that hasn't been the first process. तो मेरे लिए जब मैं वो जो स्कैनिंग दैट वर्ड्स कहीं पे अगर लाइक बेटा बड़ा होके मुझको तू बदनाम करेगा, गुड फॉर नथिंग नथिंग टडडडडा, तो Yes, ये करने में yes. मुझे मजा आता है. दैट इज व्हाट आई थिंक गेट्स मी गोइंग कि अच्छा इसको इस तरीके से बिठाते हैं, दिस इज हाउ इट्स साउंडिंग द कैचीएस्ट एंड द सबसे मतलब जबान पे चढ़ रहा है, तो वो मेरा बिल्कुल, प्रोसेस हमेशा बिल्कुल. रहता है. So I'm glad that we spoke about it because it's Hmm. almost like a completion of that conversation. I guess so. But I have to mention this. When I spoke to Sachin Jigar, I went absolutely nuts because I spoke to them in the month of December last year, which was almost about 5 months after Stree 2's music released. You know, so I think Stree 2's music came हाँ, 5 sometime. तो नहीं, हाँ 3-4 महीने तो हो ही 3-4 गए महीने थे. बाद. द म्यूजिक केम आउट अराउंड आई थिंक जुलाई अगस्त आया था वो. Yes, correct, yes. correct, So yeah, मैं yeah. साल के अंत में मिली थी, लेकिन I hold on to my observations, to my Right. questions, Right. to ask them to y'all when I meet y'all. And I remember talking to him about just my favorite song from Stree 2, which was also perhaps the most popular, which is Aaj Ki Raat. आज की रात, हाँ. The challenge I saw with an Aaj Ki Raat is the fact that just the title itself, which is Aaj Ki Raat. You know, we've had Aaj Ki Raats before, Right, right. but for a song to be Aaj Ki Raat again, how do you make the same phrase new? Right. I think you guys manage that. Yeah. I also feel like there is a line that will never leave me, which is खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की हसीनों की इजाजत. इजाजत. I'm जी, like, जी. is there a more feminist lyricist than Amitabh Bhattacharya? How beautiful is that song? They've talked to me about it, so I do know that the idea was to take the ghazal and put it in the sort of like new age styling. How much fun did you have writing that song? Because I feel like a woman's point of view, not every man can write. So how did I you do guess. that? Well, there are layers to it, I'll tell you. सबसे पहली बात तो how the song happened, अगर मैं आपको बताऊं तो अगेन वो एक ब्रॉड अंडरलाइन एक ब्रीफ था कि वी नीड अ बिग, अब वो टर्म वी डोंट यूज दैट मच, आइटम सॉन्ग, वी वोंट कॉल इट एन आइटम सॉन्ग, बट एक था कि वी नीड अ सॉन्ग dance व्हिच इज song. अ डांस सॉन्ग व्हिच इज हैपनिंग एट अ एक परफॉर्मेंस स्टेज की जगह पे हो रहा है एंड इट नीड्स टू बी अ डांस सॉन्ग. ये ब्रीफ था. तो थॉट ये था कि भी क्या लें, क्या पकड़ें. सो ऑब्वियसली द कॉन्शियस थॉट दैट वी ऑल ऑफ अस वी हैड इन माइंड कि इट जो कि पहले होता था अब हम करना चाहते भी नहीं, नोबडी वांट्स टू डू दैट, कि मतलब वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ना लगे. और दूसरी बात कि गाना जो है वो थॉट लड़की की पर्सपेक्टिव से हो, उसके नजरिए से हो कि हाउ डज शी वांट टू बी लव्ड एंड अडोर्ड रादर देन द अदर पर्सन डिसाइडिंग कि दिस इज हाउ आई अबाउट टू गो अबाउट इट. तो वो एक था. तो वहां से आया था कि भी जिसको हम कहते हैं कि ब्यूटी को बिहोल्ड करना, यू नो, वो अल्टीमेट है. सो थॉट वहां से शुरू होता कि जस्ट लुक एट मी, आंखों से मुझे अप्रिशिएट कीजिए रादर देन गोइंग अबाउट इट फिजिकली इन अदर वेज. वो थॉट था. एंड जो सचिन जिगर के साथ सबसे ज्यादा मेरा होता है कि वो जैम करके साथ में बनाते हैं, हैंड इन ग्लव होता है. तो ये लाइन मैंने दी. आई वॉज फर्स्ट स्टार्टिंग द अदर वे राउंड कि आंखों से लीजिए समथिंग करके आई वॉज गोइंग. तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे देखिए, दर दर आंखों से लीजिए, ये पार्ट पहले आया. फिर वो मैंने थोड़ा सा लिखा ये वो आज की रात, जैसे ही दिमाग में ऑब्वियसली बत्तियां सबसे पहले जली कि भी आज की रात, क्योंकि डॉन का गाना आज की रात इतना पॉपुलर. अगेन आज की रात जैसे मैंने कहा वो परदेसी परदेसिया की तरह बहुत बार आया. वो रफी साहब का भी आज की रात मेरे, वो हमारे सिस्टम में है. तो ऐसे फ्रेज को जब आप लेते हैं, वो अगर वाकई उस लेवल तक ना पहुंचा तो इट्स यू नो मिस फायर. तो बट लग अच्छा रहा था, बैट अच्छा रहा था, तो खैर पूरा गाना बना जो भी है, आगे मुखड़ा बना, अंतरा बना. फिर आई रिमेंबर जब ये गाना रिलीज पे आया
तो हमको डिसाइड करने में टुक अस गुड 15-20 मिनट चैट ओवर टेक्स्ट, मी, सचिन जिगर, दीनू, दिनेश विजन, कि डू वी कॉल द सॉन्ग आंखों से, डू वी कॉल द सॉन्ग आज की रात, डू वी कॉल द सॉन्ग मजा, ये बातें हो रही थी। तो लेकिन बाकी और कुछ आज की रात ही बेस्ट लग रहा था, यू नो। तो लेट्स गो विद इट, हमारा गाना हमने बनाया, हमको अच्छा लगता, कन्विक्शन के साथ बनाया, क्या हुआ अगर उसका नाम वैसे आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। जो मैंने लिखा है, हमने वो जो एक फॉर्मेट पकड़ा है कि गज़ल को हमने एक डांस सॉन्ग बनाया है, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन अपनी जगह है, मेरी राइटिंग अपनी जगह है, सब कुछ है। लेकिन आई फील इस गाने का जो एक्स फैक्टर जो आया, जिसकी वजह से हम लोग जो बोलचाल की जबान में कहते हैं कि गाने का फटना, गाना के रियली इट, यू नो, शॉट थ्रू द रूफ, इसके पीछे भी वो दो मोहतरमाएं जो थी गाने में, मधुमती बागची द सिंगर एंड ऑफ कोर्स तमन्ना भाटिया oh my ऑन स्क्रीन। God. तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री आई है ना, वो आई थिंक दैट इज रियली व्हाट मेक्स द सॉन्ग, यू नो, Yeah. takes to it And I another think level. this song is so weird. Okay, I'm sorry to say the word, but बच्चे, तो सबसे ज्यादा बच्चों को ये गाना पसंद आया. Have you seen reels where kids are dancing? I know they do that. They do the step. And हाँ, I'm just like, correct, it's correct. amazing. It's awesome. You know, I love interviews where I've got my questions, but you know, the conversation flows this way. कि, हाँ. like you said, कि you have to at some point decide, right? What's the song called? Because, and that's so interesting because I've never spoken to you about that. Exactly. How do you really name a song what Right. it is? आखिरकार जो एल्बम तो मतलब जो भी आपकी लिस्टिंग आती है, आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि कायदे से is going to be the name of the song and not, you know, the starting of the song, which I think दिल जला के मुस्कुरा के I think is also an option or a title of that song. So this is from Metro and Deno, guys. I cannot tell you how beautiful this song is. Of course, you know, you've heard this song multiple times. But I have to ask you, there is a love story in that song, which I Absolutely. feel is, do you ever feel naked when you write your lyrics? Like, Absolutely. I mean, you know what I'm saying. मतलब You're putting a very personal side of जी, you there. बिल्कुल, And बिल्कुल. especially with this song, I felt that. बिल्कुल. मोर देन नेकेड, आई वुड से नाउ ऑफ लेट इन लाइफ, कि मैं भी तो ये काम अब कुछ 15 साल के ऊपर हो गए कर रहा हूँ। जब मैं आया, मैंने ऑन द जॉब ही सीखा है जो किया है। मैं अपने काम में भी ड्यूरिंग द इयर्स मैंने गलतियां की है, उससे सीखा है। नाउ ऑफ लेट इन लाइफ, पहले एक होता था कि मैं कैसे गाने को सजाऊं, या तो एलोक्वेंट बनाऊं या कैची बनाऊं, कुछ एक लेके आऊं ताकि गाना वर्क करे। दैट यूज्ड टू बी द प्राइमरी मोटिव, मैं कहता हूं। ऐसा नहीं कि अब नहीं होता है, वो तो रहता ही है व्हेन यू वर्किंग फॉर अ कमर्शियल मीडियम लाइक द हिंदी फिल्म म्यूजिक दैट वी आर डूइंग। लेकिन ऑफ लेट आई वुड से कि ज़्यादातर गाने, या वो गाने जिनको मैं मतलब आई समझता हूँ क्लोज टू माई हार्ट, जिनमें अ सॉर्ट ऑफ catharsis happens for me. Yeah, something that I felt, I have lived or I've learned from life and relationships and the people around me. वो अगर मुझे गाने में कहने को मिल जाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली होती है। एंड ये जो मैंने आपको क्यों कहा इंटरव्यू की शुरुआत में कि लास्ट 3-4 साल जो हुए हैं हैव बीन वेरी एक्साइटिंग दैट वेज, बिकॉज मुझे ऐसे गाने को लिखने मिले इत्तेफाक से, वो चाहे सिचुएशन था या ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, मुझे ऐसी धुन मिल गई, आप जो भी कहिए, कि जिनमें मुझे वो मौका मिला कि समथिंग दैट आई हैव रियली लिव्ड एंड थॉट अबाउट, पॉन्डर्ड ओवर, रिफ्लेक्टेड अपॉन, वो मुझे गाने में लिखने को मिले। कायदे से इज वन सॉन्ग विच इज एब्सोल्युटली माय टेक होम फ्रॉम वन ऑफ माय रीसेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड ओवर ऑल्सो, कि अगर आप उसको गौर से सुने तो, कि देखिए वो हेड ओवर हील्स प्यार में गिरना, जिसको हम मतलब जो पागलपन, दैट जुनून, भूत, उसके तो भाई सब एवरीबडी एंजॉयज दैट फेज एंड आप उससे गुजरते हैं, हम सब गुजरे हैं, उसके गाने भी लिखे गए हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अ टाइम कम्स जब आप इस ड्रिल से कई बार गुजर चुके होते हैं, यू नो, Drill se re. Sorry, exactly. I had to do it. ड्रिल से आप गुजर चुके होते हैं Correct. of meeting someone, of really getting attracted, infatuated, then falling in love, then falling out of love, then withdrawal, जो भी होता है। तो वो सब चीज कर करके ये देखा कि that feeling that you are ultimately left with. तो कायदे से कुछ कुछ हद तक वैसा ही है। That is my part of the feeling which I really enjoyed writing the song. और जो अनुराग बासु, उनका जो थॉट था इस गाने के पीछे, जब ब्रीफ था, कि आई बिलीव उनकी फिल्म में जो डायलॉग भी है, जो मैं एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा, बट समथिंग लाइक कि यू नो, जो लंबे सफर के जो पार्टनर्स होते हैं, तो वो सेम इंसान से बार बार प्यार करना पड़ता है। Yes, yes. तो वो जो थॉट है, लाइक इसी में बहुत सारे वर्जन्स हैं इस गाने के कायदे से। तो उसमें शिल्पा राव का जो वर्जन है, मुझ पे अजीब है असर तुम्हारा, दवा लगे जहर तुम्हारा, कि प्यार कम होते होते हुआ तुम्ही से है दोबारा। क्या बात है। So now the why I mentioned to you that Kaide is really close to my heart, because it's an ode or a homage to people or couples or partners
who have figured out how to stay in love, in the journey of love, something that I personally have never been able to crack in my life. So it's my tribute and homage to How those people who have amazing. cracked it in life. How जो कि amazing. which the film is all about, अगर आप देखें तो. Shilpa Rao and you, I think, are a match made in heaven. You know, when she sings Amitabh Bhattacharya's lyrics, I think it's a special place in my heart because I love Shilpa deeply, and her voice, I just feel like carries your words so beautifully. Shilpa's voice, Like, I have the most, जो term हमेशा use करता हूँ, she's got a balmy voice. yeah. मरहमी आवाज है उसकी. Yeah, I think Shilpa की, हाँ. it's a match made in heaven. And I feel like for all of the love that you've received down the years for जी. Lal Singh Chaddha's Tere Hawale, Hmm. I feel like when she sings that song, there is a transcendence that happens. I don't know if anyone's told you, but there is a Sufiness to that song, you know, which is जी, that, बिल्कुल है. you वो know, that ek कोशिश की ibadat hai, right? हाँ, Where you correct. turn around and say, you could be singing this song to God, Hmm. or you could be singing this song to your loved one. Right. And I think that's what Sufism is. जी. Was that ever the thought when you were composing or writing for, when you were writing for Tere Hawale? बिल्कुल. बताता हूँ. तो तेरे हवाले के बारे में भी कुछ बताना है, और आपने शिल्पा की बात की है तो उस बारे में भी कुछ बताना है. तो सबसे पहले तो शिल्पा के साथ यस, वो एक क्रिएटिव केमिस्ट्री लोगों की बिल्कुल. होती है. मैं उसको केमिस्ट्री भी मानता हूँ, मैं उसको तकदीर भी मानता हूँ कि कुछ लोगों के सितारे मिलते हैं. तो और आई हैव बीन जेन्युइनली लकी एंड ब्लेस्ड अपने ओवर द इयर्स. कमाल के लोग, अमेजिंग माइंड्स, नॉट ओनली टैलेंट्स, अमेजिंग माइंड्स, अमेजिंग पीपल, उनके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी रही है. स्टार्टिंग फ्रॉम अमित त्रिवेदी टू प्रीतम दा, शंकर एहसान लॉय, सलीम सुलेमान, अजय अतुल, राम संपत, सचिन जिगर, इतने लोग हैं जिनके साथ मैंने बिल्कुल. काम किया है. तो बहुत मजा आया है काम करने में. शिल्पा इज समथिंग, आवर फ्रेंडशिप गोज वेरी लॉन्ग बैक. हम कम से कम 20 साल पुराने दोस्त हैं. तब मैं भी एज अ सिंगर ही स्ट्रगल कर रहा था. शिल्पा भी नई नई आई थी. तो वी यूज्ड टू बम्प इनटू ईच अदर इन लॉट ऑफ स्टूडियोज. कहीं मिल जाते थे कि भाई या तो वो भी कुछ एक स्क्रैच गाने आई है और मैं कोरस गाने आया हूँ, या फिर मैं किसी प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रहा हूँ एंड शी इज देयर. तो हम हल्का फुल्का जानते थे. और हमारी दोस्ती और शुरू हुई देवडी के दौर से. व्हेन यू नो अमित त्रिवेदी, मी, शिल्पा, हम लोग सब दोस्त बने हैं. वो दौर था, तब से और दोस्ती हमारी हुई. सो सालों से कोई जो आपका दोस्त होता है, एंड शिल्पा एंड वी आर द नॉट जस्ट द काइंड ऑफ फ्रेंड्स की भाई काम पे मिलते हैं. हम लोग ऐसे भी फोन पे बात करते हैं, कभी ऐसी बात कर लेते हैं और वो किसी चीज को लेकर बात शुरू हो जाती है. बिल्कुल. तो वो भी एक है. एंड आई ऑलवेज फील कि शिल्पा आज के जनरेशन में शी इज वन ऑफ दोज वॉइसेस हु डज लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन व्हेन शी कम्स ऑन बोर्ड एज अ सिंगर. कि गाते सब अच्छा है, बहुत लोग अच्छा है. शिल्पा brings a character, brings a soul to whatever. You know, she I sings. tell you, just sorry to butt in, but I feel कि एक पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं इंसान को, it's in education, right? I just feel like she spends so much time पढ़ाई और लिखाई में. तो वो एक पढ़ी लिखी सिंगर है. I hope you get what I'm saying. नहीं, I'm getting absolutely. उनका आप जो जो बोल रहे रियाज हो, है, बिल्कुल. the way she follows, you know, the greats. I think that she spends a lot of time. She invests a lot of time in the study of it as well. She does. तो वही है कि मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपकी बाकी खिड़कियां भी खुली हैं, you're experiencing life, you're absorbing it, you're realizing, आप सेल्फ अवेयर हैं, तो बहुत से आई बिलीव ऑल दीज फैक्टर्स मैटर फॉर एन आर्टिस्ट. चाहे वो जो हो, चाहे वो कंपोजर हो, सिंगर हो, लिरिसिस्ट हो, पेंटर हो, एक्टर हो, जो भी हो. आई कंसिडर आवरसेल्व्स ह्यूमन बीइंग्स एज स्पंजेस, यू नो, कि आप हम जो अब्जॉर्ब करते हैं वही निचोड़ के निकालते हैं. आप बस निचोड़ते रहिए, कुछ अब्जॉर्ब ना करें तो इवेंचुअली यू नो रन आउट. तो या सो एनीवेज कमिंग बैक टू तेरे हवाले, अब वही प्रीतम दा के साथ हमेशा रही हैं. कुछ वो मेलोडीज वो जब वो सुनाते हैं मुझे लगता है कि अरे यार क्या बात है, मतलब इस पे अब मैं कैसे लिखूं, और मतलब मैं ही लिखूं इसको, बस ऐसा मन करता है. तेरे हवाले वाज वन सच सॉन्ग. तेरे हवाले टॉकिंग अबाउट लाल सिंह चड्ढा. Did you hear the harmonium as well right in the हाँ, वो beginning? शुरू से ही था. वो शुरू से ही वो आइडिया था. और एज ऑलवेज आमिर सर की फिल्म थी, हम उसका म्यूजिक क्रैक करने पंचगनी गए थे, उनके बंगलो कुछ दिन वहाँ रुके थे हम लोग. ये टू जस्ट पैंडेमिक से पहले की बात है, 2019 की बात है. हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी पहले दिन एक गाना लॉक हुआ, विच वॉज कहानी. द सॉन्ग गॉट लॉक्ड फर्स्ट डे. सेकेंड सिचुएशन या थर्ड सिचुएशन के लिए कुछ ऑप्शंस बनाए थे प्रीतम दा ने. उसमें से तेरे हवाले की मेलोडी थी जो पहले दिन सुनाया गया. दे ऑफ कोर्स वी ऑल लव्ड इट, दे आल्सो लव्ड इट कि व्हाट अ सॉन्ग. लेकिन हाँ, ये इस सिचुएशन में नहीं जा रही है, तो ठीक है, देखते हैं व्हाटएवर. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी गॉट अप, और ये मैंने लिरिक्स ऑलरेडी लिख दिया था. Okay. हाँ. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मेरी याददाश्त सही जा रही है, तो वो जो फिल्म में एक गाना है, अगर आपने सुना, जो वो बच्चों की लव स्टोरी जो है, वो तुमको पहली बार मैंने की करा, जो गाना है, तो
उसके ऑप्शंस में सुनाया गया था, तो ऑब्वियसली इट वाज अ लिटिल टू इंटेंस या लिटिल टू डीप For फॉर that फॉर दैट situation, for सिचुएशन। sure. Yeah. बट हम लोगों ने लाइव गा के उनको सुनाया, और जब हम लाइव गाते हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो वो फिर वो सब लोग सुनने लगते हैं, वो सर्कुलेट हो जाता है, दे बिकम द स्क्रैचेस। तो नेक्स्ट डे आई रिमेंबर इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड लंच टाइम, एंड आई थिंक आमिर सर ओनली मेंशन्ड कि यार वो जो मेलोडी कल तुम लोग इसके लिए सुनाई, वो एक्चुअली एंड में व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड वहाँ के लिए बहुत अच्छी है, और थॉट भी इत्तेफाक से जा रहा था, तेरे हवाले कर दिया था, Yeah. तो वो गाना वहाँ पे चला गया। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, गानों की तकदीर भी होती है, जिसको जहाँ जाना होता है ना वो पहुँच जाता Fit हो जाता है. है। But I just love that song. I think over the years that song, हाँ. I feel like Lal Singh Chadda also meant so much to so many people. भी। And then after that, when it didn't do what it was supposed to do, just from a box office front, the winner eventually is Tere Hawale, because Tere Hawale is the beautiful reminder बिल्कुल। that there was this film, and actually it really brings you back to the film every time. इट डज ऑल्सो, जैसे कि घाघी बहुत खूबसूरत गाना है, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू लंबी मतलब दूरी तक चलने वाले विच स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, दे टर्न आउट बी आइदर लव सॉन्ग्स या हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, ये सबसे ज़्यादा लंबे चलते हैं, विच तेरे हवाले इज आई बिलीव, बिकॉज तेरे हवाले का मतलब जब लाल सिंह चड्ढा का म्यूजिक रिलीज हुआ 6 महीने बाद दिस सॉन्ग सडनली केम इनटू द चार्ट्स एंड स्टार्टेड राइजिंग। Yeah, absolutely. तो उसको Usually- स्लीपर हिट वाला मामला था, वो धीरे धीरे लगा। जबकि माय एक्चुअली ऑनेस्टली माय फेवरेट फ्रॉम द फिल्म इज कहानी, Yeah. जो शुरू के Yeah, क्रेडिट yeah, सीक्वेंस yeah. का गाना It's है, such जो a कि beautiful song. सोनू जी और मोहन कनन उनके 2 वर्जन्स हैं, उन्होंने गाया है। और वो गाना इज अगेन समथिंग जो होता है ना कि आप एक गाने को लिखने लगते हो, जो कि वो गाना खुद कहता है कि क्या कहानी, क्या कहानी में हम हैं, हाँ, या कि हम कहानी लिख रहे हैं, क्या बिल्कुल। पता हम में है कहानियां है हैं, कहानी में हम, जो वैसे थॉट है कि आप एक गाने को लिखने जाते हो, वो गाना आपसे खुद को लिखवा लेता लिखवा है। रहा है। तो व्हेन द सॉन्ग वाज गिवन टू मी, द ब्रीफ वाज गिवन, ये तो कोई ब्रीफ ही नहीं था, कि इट वाज लाइक यू हैव टू, इट्स एन ओवरव्यू, कैप्चर द फिल्म इन द सॉन्ग। तो सबसे पहले तो सोचा कि कैसे मैं क्या लिखूं, व्हाट डू आई डू, एंड एक एक लाइन लिखते 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 लाइक लेयर्स वो गाना बनता बन चला गया। गया। एंड फॉर मी इट कम्स लाइक अ फुल सर्कल, बाय फॉरेस्ट गम, बचपन से जब से देखी थी फिल्म, हैज बीन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म, मतलब अनगिनत बार देखी होगी मुझे, उसके सीन्स, डायलॉग्स, एडिट, कट्स वर्ड्स याद थे, मतलब ऐसा था। जब भी मैं आफ्टर आई बिकेम अ लिरिसिस्ट और मैं देखता था फॉरेस्ट गम, तो मैं सोचता था कि यार अगर ऐसी फिल्म, ऐसी कहानी के लिए गाना लिखने को मिले, या इस कहानी पे गाना लिखने को कहा जाए, मजा आ जाएगा। क्या बात है। And it manifested And you in that song. manifested हाँ, it. तो it's actually my tribute to the whole, I have two thing. things that have emerged from this last, हाँ. answer of yours. One is, पास और करीब को तुमने कैसे दूर कर दिया एक दूसरे से. I think it's so beautiful. हाँ. That first line of तेरे हवाले जी. is one of my favorite lines. That you were close to me, but still you were far. Like, it translates into that, right? Exactly, it translates Oh to my that. God. I think we, as your audience and the lovers of your music, can only listen to it, and then it's a penny drop, right? Like, I think that penny drop is so fun for us, because when you listen to a song, pehle usually melody is the reason why you listen to a song. Okay, because you're just like, "Arey, this sounds good." That's the first thing that catches your Attracts attention. you. हाँ, बिल्कुल. But then when you listen to it for the lyrics, that's when you get in and you Right. say, "Na ho ke bhi," Can you sing that for us a little bit? न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। And then Shilpa's voice, of हाँ, course. When Shilpa it and- comes from here, it just like lifts the song. And the beginning portion with that Mainu Chadaya, which both of them in their way, Arjita and Shilpa Yeah. sing. और इन गानों में, पूरे लाल सिंह चड्ढा के गानों में एक और चैलेंज आप कह सकते हैं ये था, बिकॉज द मोमेंट आई वुड गो अ लिटिल पोएटिक, अ लिटिल सजाई हुई लिरिक्स, कुछ अपने मेटाफर से मिली, एक समझदारी वाली बात कर दी, इमीडिएटली आमिर सर वुड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो करीब भाई सारे गाने जिस इंसान के पर्सपेक्टिव से हैं, वो साइकोलॉजिकली मेंटली इज ऑन द स्पेक्ट्रम, Yeah. वो
कविता शायरी सिमिली मेटाफर Yeah. नहीं सोचता है, Yeah. वो ABCD सादा सोचता है। तो जितना हो सके सीधा 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 कॉन्वर्सेशनल डायलॉगिश रखा गया है। उसमें एक और गाना है दैट फिर न ऐसी रात आएगी, अगर आप पूरे गाने को सुने इट्स एक्चुअली डायलॉग्स टर्न्ड इनटू राइम, उसमें Yes, कोई yes. पोएट्री या This कमाल is नहीं किया such है। an underrated song, guys. If you haven't हाँ, heard it, करेक्ट करेक्ट, फिर न ऐसी please रात go आएगी। and listen to the song. It's absolutely Yeah. stunning. But you still made me search the meaning of Rua. So thank you. ओके, Speaking of the other thing that you just spoke about, which is heartbreak. Speaking हाँ, of heartbreak, हार्टब्रेक, there is a song that I think is the poster song now for heartbreak for Hmm. this new generation. Hmm. Gen Z को heartbreak, देखो पिछले Gen Z को तुमने दिया था चन्ना मेरेया. Okay, that song I remember is perhaps the most nominated song of all times. It has got 9 awards. Okay, 9 गाने, 9 award तो सिर्फ चन्ना मेरेया को मिले थे उस साल. I remember counting. हाँ करेक्ट, And here you are, okay, with another heartbreak song for another generation, which comes from a really fun film, which is Tu Jhuti Main Makkar. I love the soundtrack of Tu Jhuti Main Makkar because the songs are fun. But in the middle of all this fun, there is this one song, which is Bedardiya. बेदर्दिया, It feels like सबके जो दिल टूटे थे एक टाइम पर, सारी जो कसर थी उस गाने में निकल गई. बाप रे, like how much pain in that song. पेन तो ऑफ कोर्स, अगेन अगर आप गौर से देखें तो पेन इज इन द मेलोडी, वो जो धुन है उसमें है दैट डार्क दोज नोट्स आर देयर जो कि उस तार को छेड़ते हैं। गाना ऑब्वियसली फिल्म के सिचुएशन और ब्रीफ के हिसाब से लिखा गया है, बट आई पर्सनली आई डू नॉट बिलीव इन कि भाई जिसने आपका दिल तोड़ा है या जिसने आपको छोड़ा है आप उसकी बैशिंग करें। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन इट। हालांकि उसमें भी वो बैलेंस हमने किया है कि आउटराइट वो एकदम बैशिंग भी ना लगे, बट यू मतलब It's quite, एक्सप्रेस, हाँ it's a great breakup हाँ, song. मतलब एक तो होता है ना कि मतलब आप सामने वाले को बैशिंग में बद्दुआ ही देते, तो वैसा नहीं है उसमें, लेकिन इट्स क्वाइट It's quite heavy duty हेवी तो है। because you've written the breakup song also, हाँ, which doesn't have any of this. This is absolutely. more That's fun. like celebrating. That's a celebrating breakup हाँ, party है ना. जी, But this बिल्कुल। one's the actual sort of like Correct. you did this, you हाँ, know. Oof. correct. So अब इसमें भी वही है कि काफी टाइम तक मैं लिखता रहा इस गाने को, बिकॉज ये अगेन एक ऐसी मेलोडी थी कि एक बार वो छेड़ देता है ना आपको, फिर निकलता जाता है। तो बहुत से एक्स्ट्रा वर्सेस भी थे, मैंने लिखे थे, देन लव रंजन पिक्ड की नहीं ये रखते हैं, ये अच्छा है, लेकिन मेरे सिचुएशन के हिसाब से एक मुझे याद है जो अभी भी याद रह गया मुझे, वो मुझे बहुत पसंद था, बट ही सेड कि इट्स अ बिगर थॉट बट इट डजंट फिट माय स्कीम ऑफ थिंग्स। Situation. तो उसमें था बिना मतलब के जिसे प्यार है, बिना मतलब के जिसे प्यार है, बस वही प्यार का हकदार है, बस वही प्यार का हकदार है। क्या से क्या हो गया हूँ मैं ये वहम पाल कर, खाता रस मुझ पे मेरा दूर वहम कर दिया, ओ बेदर्दिया। जैसे और भी बहुत से लिखे थे। फाइनली 4 मेड इट इनटू द फिल्म, 3 आर देयर इन द ऑडियो और एक फिल्म वर्जन में था। ये भी एक गाना है जो बहुत लिखने के बाद मुझे लिखा है, दैट खता से हैपेंड। Taras was yours हाँ, only तरस वाज मी। because you said Taras. हाँ करेक्ट, हाँ तरस Yeah. वाज मी। My God, तरस नहीं आया what a तुझको। song! Oh my हाँ, God, correct. did you expect that song to be that big? Because that song, really, तुमने सही कहा कि गानों की खुद की किस्मत होती है, बिल्कुल। और तरस तो अपने साथ दूसरों की किस्मत लेके आया था. बिल्कुल, Like it बिल्कुल। made Sharwari a star. हाँ। The entire story of Munja, I think Maddock really बिल्कुल बिल्कुल। have gone on to that. That बिल्कुल। song did a lot for the film. एंड मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि कई बार देखिए एक यूजुअल प्रोसेस है कि भाई एक मेलोडी है, आपको धुन दी गई, आप उस पर लिख रहे हैं, या फिर मैंने कुछ लिखा है, जो मैं रेयरली करता हूँ, मैं औरों की बात कर रहा हूँ कि कुछ लिखा हुआ है, उस पर कंपोजर ने कंपोज किया, और जब आप वो जैम करके हैंड एंड ग्लव तरीके से बनाते हैं ना, कुछ गाने इंस्टेंटली जब बनते हैं, मुझे आई हैव मेमोरीज ऑफ सर्टेन सॉन्ग्स। तरस यू मेंशन्ड इज वन सॉन्ग की ये लाइन मैं कुछ और तरीके से सोच रहा था, सुनते ही सचिन जिगर द रिएक्शन वाज तरस नहीं आया, बिकॉज मेरा था तरस नहीं आया तुझको, बट दैट तरस नहीं आया तुझको, तो पहले जो उनके मुंह से निकला वो ये था। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर ऐसे ही जब हम जहनसी पे काम कर रहे थे, मैं और यू नो विशाल शेखर, वो गिटार लेके द फर्स्ट थिंग स्टम्प वाज जहनसी, तो तब लगता है कि कुछ तो है, हाउ कैन दिस हैपन, कि मतलब वर्ड गो से मतलब आप वो बैठ जाए, तो वो बहुत कमाल लगता है जब गाने उस तरीके से बनते हैं ना, इट्स अ डिफरेंट फन। I think we already spoke about Rocky Rani at the round table that we had done,
because it was the end of that year that we spoke. Right, we did. But I do want to talk about War 2 because that's, of course, this week it's the release. हाँ. And I want to ask you, how does a Bengali man who grew up in Lucknow write a full-on Punjabi song? It's unbelievable because honestly, Avan Javan is so popular right now. Reels बन रहे हैं उसके, सारे paps उसी गाने को use कर रहे हैं. Did you know? Because see, they can come and tell you कि देखो यार अमिताभ, ये वो पहला गाना होगा, बड़ा गाना है, ऋतिक है, कियारा है, डांस सॉन्ग है. But how do you write a song that you know is going to be this sort of sensation? See, again, the first point to that कि जैसे आपने कहा कि पंजाबी, अब इसमें काफ़ी पंजाबी है. एक मैं हमेशा सबसे पहले कन्फेशन करता हूँ जब भी ये बात उठती है कि भाई मैं पंजाबी समझ लेता हूँ, अब पूरी तरीके से समझ लेता हूँ, बिकॉज आई हैव ओवर द ईयर्स हर्ड लॉट ऑफ पंजाबी म्यूजिक. वो तो भाई आसपास है ही, सारा टाइम हम सुन रहे हैं. मेरे कुछ दोस्त, करीबी दोस्त पंजाबी हैं, उनसे पूछता रहता हूँ कुछ ना कुछ, ये कैसे होगा. तो आपको उसका ग्रामर अगर समझ में आ जाए, हिंदी और उसका ग्रामर एकदम सेम है, अगर आप उसको समझ जाए तो यू कैन स्ट्रक्चर योर सेंटेंसेस करेक्टली. लेकिन स्टिल भाई मैं समझ में तो मुझे अंग्रेजी भी आती है, मैं अंग्रेजी में तो गाने नहीं लिखता. आई एम अ बंगाली, लेकिन मैं बांग्ला में गाने नहीं लिखता हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ. बिकॉज राइटिंग इन अ लैंग्वेज इज डिफरेंट, यू आर डूइंग पोएट्री इन लैंग्वेज अलग बात है. तो पंजाबी मैंने जब भी लिखी है, मैंने इमिटेट किया है पंजाबी गानों और राइटर्स को. मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है. हाँ, मैं ऑथेंटिक जैसे होना चाहिए. अब भी जो लिखता हूँ, आई एम श्योर उसमें कुछ ना कुछ गलत रहता ही है. कितनी बार तो मुझे मालूम है कि गलत है, मैं सामने वाले से कहता भी हूँ कि देखिए ये गलत है, आइडियली होना चाहिए. नहीं, सुनने में ये अच्छा है, लग रहा है, तो लेट्स गो विद दिस, दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो मैं इमिटेट करता हूँ पंजाबी. एक्चुअली वो मेरी भाषा नहीं है, उसमें शायद मुझे लिखना भी नहीं चाहिए. आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ पीपल जो सोचते होंगे कि आप पंजाबी में लिखता रहता है बैठ के. बट एनीवेज, कमिंग टू आवन जावन, सो जो स्क्रैच या जिसको वो गिटार पे बजा के द वे प्रीतम दा गिव्स मी द मेलोडी, उन्होंने मुझे मेलोडी भेजी थी, उस पे वो मर जावण दे ऐसा कुछ गाया हुआ था उन्होंने. तो वो साउंड जो है मर जावण, आवन जावन करते करते ये थॉट निकला, ये आया उस पे. तो लिखा मैंने. अब एक होता है ना, जब आप गाने को लिख रहे हैं और आपके थॉट का फ्लो बन गया है, तो आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, यू डू योर जॉब एंड देन द एनालिटिकल साइड कम्स आउट. तो फिर जब ये गाना सुनाया गया, ओके हुआ, तो सबसे पहले आई वाज द वन टू रेज द क्वेश्चन कि लेकिन यहाँ पे पंजाबी करने का मतलब बन रहा है क्या. एक तो पहली बात, मैं लिख रहा हूँ, वही सेंस नहीं बनता है. और दूसरी बात, क्या हमारे कैरेक्टर्स या सिचुएशन को जरूरत है. बट गाने में वो वाकई सुनने में अच्छा लग रहा था. जब उसका स्क्रैच रिकॉर्ड होके आया विद द ट्रैक, इट वाज रियली साउंडिंग गुड. एवरीबॉडी सेड यार अच्छा लग रहा है, लव सॉन्ग है, सिंपल है, बाकी बीच में हिंदी भी आ रही है, लेट्स गो विद दैट. सो पार्टी सॉन्ग है. Because if you think about it, I think they're in Italy. It's the groove, that's why. Yeah, it's the groove. It's quite exactly, cool. Exactly. But it's so amazing to see that. That is one of my most exciting things about you as a writer, is that you have the ability to make such fun songs. You can do very serious songs like we just spoke about, and then you have these cathartic songs as well. Like I'll never forget, you gave us the line for the generation, which is "Mehfil mein teri हम ना रहे तो हम तो नहीं है," which I think is one of my, I mean, I'm sure everybody agrees with me, but even तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, I think that song also did so much for this. And I'm switching again, I'm going to भेड़िया right now. अपना बना ले से जुड़ी बहुत सी बातें मुझे बतानी है. जो आपने सवाल पूछा as far as the song particularly technically the lyrics is concerned, स्टोरी ये है कि अपना बना ले जस्ट पैंडेमिक के बाद वो दौर था कि जब अभी हमने कहा कि लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन एक्साइटिंग, एक के बाद एक बहुत से प्रोजेक्ट्स आए हैं. अपना बना ले वाज दैट सॉन्ग जहां से द बॉल एक्चुअली started rolling. Yeah, it started rolling. So true. And सचिन जिगर, जिनके साथ पहले भी हमने बहुत बार कोलैबोरेट, हमने तो वो गो गो अगॉन, बाबा जी की बूटी और डांस बसंती, ये सब भी साथ में किया है. लेकिन होता है ना कि आर्टिस्ट, ह्यूमन बींग्स, हमारी जर्नीज होती है. तो आप एक टाइम पे मिलते हैं, आप टेक्निकली काम निभा लेते हैं, बट दैट केमिस्ट्री हैपेंस एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम. तो वी हैड आवर इंडिविजुअल जर्नीज, एंड इस वक्त जो हम कोलैबोरेट हुए साथ में, तो एक अलग एक क्लिक किया हम लोगों ने. और उसके बाद से कितने प्रोजेक्ट्स हमने साथ में किए, एंड यू नो एक्सटेंसिवली आई हैव कोलैबोरेटेड विद देम. इट्स मतलब लॉट ऑफ फन. वो भी मतलब वैरायटी उनमें आप देखिए, मतलब चाहे वो आप अपना बना ले लीजिए, आज की रात ले लीजिए, खेतों में तू आई नहीं ले लीजिए, तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा, तो सब वो बनते जाते हैं. वी जस्ट गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर. आई ऑलवेज ऑनेस्टली एंड वेरी, पीपल से कि बहुत ये मॉडेस्ट हो रही है, बट एक्चुअली माई कंपोजर्स एंड माई डायरेक्टर्स हैव गॉटन द बेस्ट आउट ऑफ मी. मैं तो वरना मुझे पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं. तो आई वाज लकी टू कोलैबोरेट विद द राइट पीपल.
सो कमिंग बैक टू अपना बना ले, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। ये गाना भी हम लोग मोस्टली दुबई में जाते हैं, वहाँ पे बना था। एंड ये मेलोडी सुनते ही, द मोमेंट दे sang दिस मेलोडी, प्लेड इट टू मी, इट्स वन ऑफ दोज मेलोडीज व्हेन यू फॉल इन लव विद दैट मेलोडी कि यार धुन देखो क्या धुन है। कुछ दिनों पहले इत्तेफाक की बात है, आई टेक्स्टेड सचिन एंड जिगर कि मैं कहीं गया हुआ था, मैं कहीं बैठा हुआ था, अपना बना ले का फ्लूट रिसाइटल बज रहा था। एंड देन आई वाज, आप अपना लिरिक्स विरिक्स भूल जाते हो ना, एंड सडनली आई वाज लाइक यार मेलोडी कितनी खूबसूरत है यार, मतलब हु विल नॉट फॉल इन लव विद दिस मेलोडी। उस पे अगर चलो अच्छे लिरिक्स आ गए, अच्छा पिक्चराइज हो गया तो वो बात अलग है। सो अपना वाला ने वहां से शुरू हुआ। इसमें भी वही हो रहा था कि इतनी प्यारी मेलोडी थी, तो मैं सोच रहा था कि भाई कैसे इसको सिंपल रखूं, अच्छा करूं। एक दो कुछ और ड्राफ्ट लिखे भी थे, देयर वाज अनदर ड्राफ्ट व्हिच वाज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो मैंने पहले कुछ एक लिखा था, आई स्टिल रिमेंबर इट, इट वाज जो कुछ भी मेरा है सब दे जाऊं, मैं प्यार तेरा ही बस ले जाऊं, तेरे पन्नों पे मेरी कहानी, मुझे समथिंग से है लिख जानी, भले बदले में मैं मिट जाऊं, ऐसा कुछ था। ओहो, विच वाज वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Yeah, तो yeah, उन्होंने of सुना, course. अच्छा अच्छा तो है, अच्छा अच्छा है। फिर अगले दिन वे अगेन मेट, कहा कि यार नहीं ये सिचुएशनल हो रहा है, इसको इट जस्ट नीड्स टू बी अ लिटिल बिगर, open, yeah, ओपन, yeah. मतलब इसकी अपनी जिंदगी हो, सिंपलर थॉट हो। फिर एक दो और ट्राई किए, एंड ये थॉट कि भाई ऐसा है कि देयर इज अ कनेक्शन दैट आई हैव विद यू, बिकॉज दिनेश विजन, उनके साथ मैंने बैक इन द डे द सॉन्ग राब्ता भी की है फ्रॉम Yeah. एजेंट विनोद। तो उन्होंने कहा कि जैसे उस गाने में था कि उन्होंने कि सम पीपल हैव दैट कनेक्शन, आई हैव दैट कनेक्शन विद यू, ऐसा कुछ एक लेके आओ। तो करते करते अचानक वो गुनगुनाते हुए ये थॉट आ गया, एंड वहां से बाकी शुरू हुआ। तो अपना बना ले वाज वन सच सॉन्ग, एंड देन केम अ लॉट। उसके बाद तो फिर जरा हट के जरा बच के आई, फिर It's और my क्या favorite. चाहिए। I mean, I have a story. I remember when, you know, you made me listen to Tere Vaste for the first time. हाँ, आई And I थिंक was सो, so राइट राइट, excited. I was आई so रिमेंबर। excited because it was a बिल्कुल Qawwali style song बिल्कुल that was coming बिल्कुल back. बिल्कुल। And I was instantly on. I was like, this song is just going to like, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग, अभी आपने कहा उस गाने का जो चार्म है दैट कवाली so रिदम, ठीक है। तो पहले वो भी कुछ अलग अनप्लग टाइप का एक अलग पंजाबी पॉप वाला स्पेस था, उसमें कुछ तो और लिखा था। मैंने अपनी वो टूटी फूटी पंजाबी मिला के कुछ लिखा था, बट दैट केमिस्ट्री वाजंट हैपनिंग, मैजिक वाजंट हैपनिंग। करते करते सोच के ये थॉट एक दिन आया कि हाँ भाई अब थॉट तो अच्छा लग रहा है, एंड डिस्कशन में सचिन जिगर और दिनेश विजन दे क्रैक्ड इट कि यार वो जो एक स्टाइल था ना, जैसे वो हमने सुना है जो चांद सिफारिश में सुना है, वो वाला अगर स्टाइल इसमें आ yeah, जाए, yeah. एंड वहां पे रहे यार ये तो बैठ गया। तो वो वहां से दैट सडनली द थिंग That happened. song is one of my favorites also because Vicky's so cute in that song and the dance steps and everything. I mean, see, And he has lived it so well, you know, the when so he does he that, sung वो it ये जो so नस well, लगती है वो, yes. he's done it very well, वो बहुत अच्छे से किया है। एंड उस गाने में भी वो गाना मुझे इसलिए पसंद है कि बहुत अच्छी मेलोडी है, सुनने में कैची है, सब कुछ है, कि प्यार मोहब्बत के थॉट की भी मैं तेरे लिए ये करूंगा, चांद तारे लेके आऊंगा, तो बहुत पुराना थॉट है, बट उन्हें ठहरो, चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लेके आऊंगा। तो आए मजाक से मैं कहता हूँ कि इट्स एक्चुअली द सॉन्ग ऑफ अ लेजी लवर हु हैज लॉट ऑफ एटीट्यूड। It's so ये true. उसका गाना है। Attitude तो है हाँ, इस attitude बंदे पे। में कि उनको बोलो तो थोड़ा सा रुके हाँ, उसके बाद हाँ, मैं कि करूँगा। भाई जाने की जरूरत क्या है फलक तक, भाई तेरे आंखें वाके, Yeah. फिर भी चल ठीक है, अगर तू जिद करके तो मैं ले आऊंगा, ले आऊंगा। मेहरबानी कर दूंगा, टेंशन। Thama's coming up, I know that. हाँ, आई थिंक इट्स अ दिवाली रिलीज। It's a Diwali release. That's also with Maddock. That's also with Wow, Maddock. so you, And Sachin it's a new Jigar, chapter that's getting Yeah. added to the horror universe. the horror universe. So it's you, Sachin Jigar, you know, Maddock. I think that there's बिल्कुल। something there. Hmm. And I think that they love you a lot, which is amazing. But if I had to ask you, what is it that makes these collaborators special for you? And you have to tell me exactly that one thing. Okay, so what is it about Sachin Jigar that truly gets you going? I think it's always that personal connection. Yeah. जब दोस्ती हो जाती है ना, जिनके साथ आप बैठ सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, काम के अलावा भी कुछ और बात कर सकते हो, अपने कुछ दिल का खोल के बता भी सकते हो। तो सचिन जिगर हैं, इवन दिनेश विजन, दिनेश इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्रोड्यूसर्स राइट नाउ, ही इज अ बिग पावरफुल इंपॉर्टेंट मैन, बट व्हेन ही इज विद अस ही इज लाइक वन ऑफ अस। How lovely. वो ये महसूस ही नहीं करते कि प्रोड्यूसर हमारे बीच में बैठा हुआ है। तो वो जो कंफर्ट है कि अच्छा भाई कॉम्पोजिशन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं नहीं रुक जा, हम ये कर लेते, अच्छा लिरिक्स में ये हो रहा है, हम ये कर लेते, अच्छा गाना ठीक है, डीनू से डोंट वरी, हम लोग इसको हैंडल कर लें शूट में, नहीं अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस है, लेट्स गो विद दिस सॉन्ग।
तो ही इज ओपन टू एक्सपेरिमेंट्स, ही सीज कि नहीं भाई इन लोग का एज म्यूजिशियंस कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वी शुड गो विद दैट। हमें भी वो कंफर्ट जोन है कि कोई चीज़ अगर नहीं जमती तो हम ऑनेस्टली बताते हैं कि नहीं सर ये बना रहे लेकिन बात बनी नहीं। बिल्कुल। सो वो कंफर्ट जब तक, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऑल द पीपल दैट हैव बीन माय कोलैबोरेटर्स हैव आर आल्सो माय गुड फ्रेंड्स। दैट्स ग्रेट। वो इक्वेशन बहुत जरूरी है, जिनके आसपास यू कैन बी योरसेल्फ, How lovely. तो तभी तो मतलब Then, अच्छा then काम I निकल don't के think I आएगा। should go to Pritam Da, because Pritam Da, of course, would be similar. एब्सोल्युटली। Yeah. प्रीतम दा ही इज द ओल्डेस्ट कांटेक्ट दैट आई हैव इन दिस Yeah, I know. सिटी। I मैं जब know. शहर में Yeah. आया I था, आई know. मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। Yeah. ही इज द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री जिसके थ्रू सारे कॉन्टेक्ट्स मैंने आज तक हुआ है। क्या बात पहले है। असिस्टेंट था, फिर बैक कोलैबोरेटिंग एज अ लिरिसिस्ट। तो उनसे तो मतलब आई टेल हिम आल्सो आई हैव नोन हिम फॉर मोर देन हाफ ऑफ माय लाइफ। Life, जैसे स्पाउसेस एक दूसरे को कहते हैं ना, जानते हैं यार। तो उनके साथ वैसा वाला है। नहीं, ही इज ऑलवेज ओल्डर, ही इज दादा। Of तो ये हम courस। लोग दोस्त हैं, मैं अमित हम दोस्त हैं, सचिन Correct. जिगर हम दोस्त हैं। शिल्पा आप दोस्त हैं, हाँ, बट बिल्कुल। ही इज दैट सीनियर गाय। करेक्ट। क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, जैसे उनमें प्रीतम इज ऑफ कोर्स देयर, शंकर एहसान लॉय, देयर विशाल शेखर, देयर सलीम सुलेमान, राम संपत। इन लोग के पास मैं अपने गानों की सीडी लेके एज अ स्ट्रगलर मैं गया हूँ। मैंने वेट किया है, इनके ऑफिस के बाहर बैठा हूँ, इनके लिए कोरस गाया है, कभी काम किया है। तो ये मुझे आज अपना दोस्त मानते हैं। मैं आज शंकर एहसान लॉय के साथ जैम करता हूँ, कोलैबोरेट करता हूँ, या विशाल शेखर के साथ करता हूँ। अभी रिसेंटली शेखर के साथ एक इंडिपेंडेंट, एक इंडी, उनके गरुड़ा म्यूजिक के लिए एक सिंगल किया हमने। तो दे ट्रीट मी एज माय फ्रेंड्स। अरे क्या बात है, चलो बैठते हैं यार, आज ये करते हैं वो। बट एक्चुअली देयर ऑलवेज बी व्हाट दे वर। वो उनका बड़प्पन है कि आज मैं उनका दोस्त हूँ। करेक्ट। हाउ सो लवली। दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि आज उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा ही दैट I इज। always like to ask lyricists, because it's such a subjective चीज जो आप करते हो कि आप honestly it's thoughts, right? So is there a thought recently, like Rajshekhar mentioned your song, is there somebody else's song that you heard recently and you absolutely love the thought or the writing behind it? तो राजशेखर का ही एक गाना है कि करीब करीब सिंगल से, वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। आई रिमेम्बर आई टेक्स्टेड हिम वन डे। ये गाना जब आया था सुना था, बहुत बार सुना है। सडनली एक दिन एक कुछ मूड में आप सुनते हाँ। हैं, लगता है यार क्या लिखा है इस बंदे ने। Yeah. वो धुन भी कमाल है, बहुत प्यारी धुन है, और विशाल मिश्रा की धुन है, राइट। तो आई टेक्स्टेड कि यार ये गाना है, जो भी बोल, मतलब यू आर ब्लेस्ड दैट यू हैव रिटन दिस सॉन्ग, यू नो Yeah. ऐसी बात है। सो वैसा है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि मेरे जितने कंटेम्प्रेरीज हैं सबकी, अब ये सवाल जिस वक्त मुझे पूछा जाता है मैं एकदम से ध्यान से उतर जाता है, अच्छा किसका कौन सा बोलूं, फिर घर जाके याद आता है, अरे कौसर का वो गाना था, यार। अरे स्वानंद भाई का वो गाना था, वरुण का वो गाना था, ये शुरू हो जाता है। बट सबका कुछ ना कुछ सारा टाइम, आप कौसर का ले लो, कौसर का सारे गाने कमाल लिखती है, कौसर बहुत अच्छी लिखती है। कौसर इज माय बेस्ट Of फ्रेंड, course, हमेशा of course. क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो पैडमैन से आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरी सारी हाँ आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। तेरी खुशियां वो भी हो सकता है भी सच्चा प्यार है तो क्या मेरी तेरी खुशियां मेरी नहीं हुई, होता है ना। That's true. एनीवे, That's तो बट जो कौसर ने लिखा वो ये था, Yeah. उसमें जो पूरा वो Yeah. बिजली का जो बिल है, तेरे पिन कोड का नंबर, कांधे का तिल, दैट इमेजरी यू नो, Yeah. वो है। फिर वरुण है, वरुण के तो कितने गाने हैं, अपना मोह मोह के धागे ले लो। Yeah. अभी कला में जो उसने लिखा था शौक, हाय हाय। You know? बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। समेटेगा मुझको बता दूं जरा, तो वो है। स्वानंद सर के तो इतने गाने हैं, मतलब वो बाबरा मन से चले आ रहे, वो कितने पहले से तो लिख रहे हैं। मैं आज भी, क्योंकि एक टाइम था कि उनके लिखे हुए गाने मैंने स्क्रैचेस गए, तो मैं आज तक उनको स्वानंद सर या स्वानंद भाई बोलता हूँ। क्या वो बात कभी बोलते क्या टिप्पू तू मुझे भाई हाँ, भाई और हाँ, सर सर बोलता रहता है, लेकिन वो अंदर से ही आता है। स्वानंद सर के गाने हैं। देन अनविता इज देयर, अनविता, Yeah. गुलाबो, लंदन ठुमकदा। एंड जबकि उसका जो दूसरा पोएटिक और डीप Yeah. साइड है, आप सोचिए, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन शी गिव्स यू अ गुलाबो Yeah. एंड शी गिव्स यू अ। तो ये है इरशाद भाई, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज तेरे। Yeah. इरशाद भाई का भी रिसेंटली चमकीला। चमकीला, एंटायर चमकीला, एंड स्पेशली मैनू विदा करो। मैनू विदा करो जब आया था, आई गॉट हिप्नोटाइज्ड बाय दैट सॉन्ग। मतलब मैंने इरशाद भाई को, रहमान साहब को, सबको टेक्स्ट किया उस गाने के बारे में, कि अरिजीत को तो किया ही किया। तो वो कुछ गाने होते हैं ना कि आपको Yeah. पकड़ लेते हैं और लगता है कि यार कैसे बन गया ये गाना। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक अ विंटेज क्लासिक सॉन्ग, कि मतलब वो अगर मैंने कभी सुना ना हो एंड समबडी टेल्स मी कि ये तो एक रफ़ी साहब का और साहिर साहब का, यू नो, एस.डी. बर्मन या रोशन साहब का गाना है, उस लेवल का गाना लगता है मुझे। तो वही है, सबके इतने लोग हैं सब अपने आसपास जिनके कुछ ना You कुछ know,
आजकल ये ट्रेंड है सैयारा के गानों में. Hmm. You heard that song which was made by AI का इस्तेमाल करके The उन्होंने किशोर कुमार version of it. किशोर हाँ, वो version. तो आजकल बहुत ही होता है, हर गाने में हो रहा है. अब my point is हाँ. I'm torn यहाँ Amitabh Hmm. because my whole point is that ऐसा नहीं होना चाहिए. Hmm. But दूसरी तरफ I'm also like but it sounds so good when Kishore is singing it. Because of course I love Kishore Kumar, right? बिल्कुल, और मैं Oh, तो भाई man. इस लाइन में हूँ because of उनकी किशोर वजह कुमार. से. मतलब वो So I thought of a fun question. I don't care about whether it's right or wrong. वो हम नहीं बोल पाएंगे. But if you had the opportunity for any of your songs to have been sung by Kishore Kumar, what song would you give him? अरे फिर तो मतलब पिटारा खुल जाएगा. मतलब कहाँ से शुरू होगा, और मतलब हर दूसरा गाना तो वही होगा कि काश वो गा देते तो बहुत अच्छा होता. बट देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जो किशोर दा ने गाए होते, से आई एम श्योर ए दिल है मुश्किल, टाइटल सॉन्ग ऑफ ए दिल है मुश्किल. फिर ज़ह नसीब, बहुत से गाने हैं जो मतलब नाउ दैट यू आस्क मी कि अगर उनकी आवाज़ में हुआ होता. एंड बिकॉज ऑफ एआई की वजह से कम से कम वो तो है कि बनी उसको कोई आर्टिफिशियल बनाए, आप एक बार सुन के तसल्ली तो कर सकते हो. बाकी सही गलत अपनी जगह पे है. बिल्कुल बिल्कुल. बट व्हाट अ थॉट. बट आई विल गिव यू एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस पे कि व्हाई किशोर दा इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. कि एक तो होता है कि there's this one driving force which becomes that influence and trigger in your life. I think किशोर कुमार was that for me always. जिंदगी का सबसे पहला गाना उनका सीखा था. बड़े होके भी सुना, ऑर्केस्ट्रा में उनके गाने गाया करता था, सब कुछ करता था. सो इन माई म्यूजिकलिटी तो ऑफकोर्स उनका असर बहुत है. मैं आज भी जब कुछ गाने जाता तो क्योंकि मैंने एक टाइम पे इतना उनको फॉलो किया है कि मुझे लगता है मैं ओरिजिनल साउंड ही नहीं कर रहा हूँ, उन्हीं का हैंग आ रहा है. वो भी एक होता है. दूसरी बात, द वे किशोर दा यूज्ड टू सिंग द लिरिक्स ऑफ बख्शी साहब, मजरू साहब, इंदिवर साहब और पहले के हमारे जितने गीतकार थे, वो उनके गाने मतलब दे बिकम सेकंड नेचर टू मी. सुन सुन के उनके हर नुआंसेस घुस गए. तो आज जब मैं लिखता हूँ, द वे I want certain words to be said or pronounced or scanned in a song, उसका असर अभी तक है. वो जो मैंने सुना है वो आता है. क्या बात है. तो उस पे भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ है कि my reference point is that कि भाई इस लफ्ज को इस लाइन में इस तरीके से भी गाया जा सकता है, but what I prefer is this because this is what I'm used to. And how lucky are you that most of your, I mean, at least for me, when I look at your गानों की लिस्ट को क्या बोलते हैं, डिस्कोग्राफी, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है. ज़माना नहीं रहा अब तो डिस्को. वो तो मजा नहीं है उस वर्ड में. हाँ, करेक्ट. लेकिन जब मैं तुम्हारे गानों की लिस्टिंग देखती हूँ, प्लेलिस्टोग्राफी, I think that some of your most wonderful songs have been rendered by Arijit, and I think that it's कहीं ना कहीं यार it's beautiful, it's poetic because it's beautiful. It's the same thing. जब वो शिल्पा वाली बात हो रही थी कि वो कुछ रिश्ते हैं कि वो लगता है वो तो अपने आप ही कैसे वो वर्क करते हैं. I don't know. So I would like to say, Amitabh, it's always a pleasure to sit down and chat with you because Absolutely. I feel like you are so open, okay, with the way that you make your music, and that's very very. आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं शायद, you know, there could be budding lyricists. The funny thing is that जिस भी lyricist से मैं मिलती हूँ वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं यहाँ lyricist के अलावा बाकी सारी चीज़ें करने आया था. But you really inspire a generation to maybe become lyricists, and I think that's why this conversation is always very dear to me. Because I feel कि radio presenters की तरह stars बहुत सारे होते हैं, लेकिन lyricists की जो गिनती होती है वो हमेशा हाथों की उंगलियों तक ही सीमित होती है. I agree. And that is in every generation. Right. You only have say 5 or 6 lyricists for every generation in an industry. Right. And it's such a pleasure that every time, you know, I ask you, we can sit down and talk. So I hope you had a good time and thank you so much for chatting with me. I absolutely had a great time and genuinely हमारा जो last interview हुआ था, I think कट टू सीधा शायद आज ही इतना उसके बाद मैं बोला हूँ एक बार में, otherwise नहीं करता हूँ. And like I said कि when you ask a certain question and the way you receive my question when I'm talking to you, when I'm looking at you, उससे भी conversation बहुत वो होता है ना. You are an expert at that. Thank you so much. Thank you. Means a lot. Always a pleasure. Always a pleasure. Hi, मैं हूँ अमिताभ भट्टाचार्य और मैं हूँ Just Too Filmy पर. And by the way, बहुत बहुत मुबारक हो Just Too Filmy and Raw Talks. भाई मैंने सुना आप लोग न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे छा गए हो. क्या बात है. Way to go. Way to go. बहुत बहुत मुबारक. My best wishes. Keep it up. Amazon Music.